So, what we have observed since last few years that they have been taking this paper which has 20 RC questions for which they will be giving you four paragraphs, okay, and five DI questions. And in 1 year, even the RC was little data oriented. So, what our goal is in today class to make you comfortable with data-based questions. And in most of these questions, you don't have to calculate anything, but with simple reasoning, you can also find the answer. But again, you need to be very you need to have the concentration for this question. Like otherwise, you will miss the statement or miss the fact. So your answer might be wrong then. So let's do the first one first. I think other two people have tried it. Anaga, you have not. So we'll do it together. We'll read together. Start reading the questions and the paragraph. So All right. please review the graphs shown below. These are meant as an add to a thought exercise and may not represent the true figures for कोविड 19। ठीक है, इन्होंने मतलब उससे वो कर लिया कि may not be the true figures। ठीक है, although the data is coming from Harvard University, but still it's very political to write that we are not taking any uh, responsibility for this data. So total confirmed death and total confirmed cases across country comparison. The red is telling you total confirmed deaths due to COVID-19, and blue one is telling total confirmed cases of COVID-19. So these are the six countries: India, US, Brazil, Kingdom, Spain, and South Korea. And you can just see that the total death cases is very low. You can even you cannot even count or read the figures, but it is there in the base of the paragraph, and the total confirmed cases is uh, blue one. Okay. Uh, with entire data, with all these data, you will have to answer just one question, which is please review the following interpretation of the graph shown. The United States had the worst spike in COVID-19 during the end of the December. So we'll go back to the United States, uh, and you can just see that the x-axis is representing months here. So the what it is saying that United States has worst spike. Is it true or not? Tell me. बताओ, कोई भी बताओ. Yes, sure. Anaga, what are you saying? Is it true it is worst spike? I don't think so. हाँ तो फिर मतलब आई No, डोंट no, थिंक कंफर्म कॉन्फिडेंटली बोलो. no, no, no. हम्म. क्योंकि वर्स्ट वर्ड जो है ना आइदर मतलब सोसाइटी के लिए थोड़े पॉजिटिव होता है, बट ग्राफ के लिए तो वही है कि स्पाइक कम है. बट व्हाट वी कैन सी दैट यहाँ तो ऊपर ही बढ़ रहा है. समझ रहे हो ना सत्यम? सर ऊपर बढ़ रहा है से मुझे ग्राफ में ये फील हो रहा है कि इसमें वो स्पेन का वर्स्ट, सॉरी सर, यूएस का वर्स्ट है। वर्स्ट कैसे है बताओ. सर क्योंकि एज दिस, 1 मिनट सर, The United States had the worst spike in COVID-19 during the end of December. तो सर हम्म. अगर हम एंड ऑफ दिसंबर की बात कर रहे हैं तो सर हम्म. सबसे पीक पर तो शो हो रहा है सर 20 लाख करके कुछ डेथ रेट। बात 20 लाख का नहीं है.
स्पाइक मतलब क्या होता है? ये फिगर ऐसा थोड़ी ना पूछ रहा है कि किसमें वर्स्ट या सबसे ज्यादा कोविड केसेस है। वर्स्ट स्पाइक मतलब कि और बुरे तरीके से बढ़ रहा है, मतलब इट्स, ओके सर आई गॉट द पॉइंट। जैसे वर्स्ट स्पाइक जो है, हम्म। अगर हम उस के तरीके से भी देखें कि मतलब बुरे तरीके से बढ़ रहा है, तो इसका सबसे ज्यादा है। Yeah, true. विद इन द कंट्री भी मैनेज करें देखें, तो दिस डजंट से दैट। एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट पहले स्टेटमेंट पढ़ो। द यूनाइटेड किंगडम हैड अ वेरी स्मॉल बर्डन ऑफ केस लोड कंपेयर टू इंडिया। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम के पास कितना है? 2,80,000 के आसपास, मतलब ये सब जोड़ भी ले तो भी तो इंडिया से तो बहुत कम है ना। यस सर, दैट तो स्टेटमेंट इज ट्रू। हाँ, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट shows साइन ऑफ स्लोइंग स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो ये भी ट्रू है, क्यों? क्योंकि सब जगह पे लास्ट में ना इट्स अपवर्ड एट एवरी अदर कंट्री। तो कहीं पे भी स्लोइंग नहीं है, बट अगर इंडिया का देखो तो इट्स लाइक दिस। तो सेकंड थर्ड वाला भी सही है। Sir, I have one doubt. Sir, how can be third true? Like we are not getting the graph of to evaluate the third point. नहीं, ये बोला कि इंडिया इज द ओनली स्टेट कंट्री सो साइन अप स्लोइंग स्प्रेड। ये कहाँ बोला कि डिक्रीजिंग स्प्रेड? स्प्रेड स्लो होना तो ये दिख रहा है ना, बिकॉज दिस ग्राफ इज नॉट स्पाइकिंग, इट्स फ्लैटरिंग। Hmm. बाकी सबको देखो वो स्पाइक होता जा रहा है। Hmm. Sir, हाँ, sir, the graph of India is like to be bell-shaped, but sir, the graph of Spain may show some same thing like India. नहीं देखो, स्पेन में भी क्या दिख रहा है, तुम यहाँ पे आगे देखो कि यहाँ से ये फिर ऊपर की ओर ही तो जा रहा है ना। Yes, इट्स sir. नॉट Yes, sir. स्लोइंग स्प्रेड, ये वाला जो है इट्स स्लोइंग द स्लोइंग डाउन, मतलब कम होता दिख रहा है। बाकी सब में देखो इट्स ऑल ऑल आर गोइंग अपवर्ड, Yes, sir. है ना। तो अगर तुम इसको नहीं भी मान लो कि ये भी करते हैं, तो यहाँ से ग्राफ कैसे दिख रहा है? दिस दिस ग्राफ का तो हम प्रिडिक्शन ही करते हैं ना, मे बी अगले मंथ में यहाँ चला जाए तुरंत। बट जब हम लोग नॉर्मल ग्राफ हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि इफ दिस इज अ ग्राफ, तो व्हाट वी फिगर कि दिस इज द लाइन ऑफ ग्रोथ। तो जब Yes, sir. ग्राफ को रीड करना है तो ओनली इंडिया इज शोइंग द स्लोइंग डाउन। तो जो है सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट नहीं। So when I was solving the question, I marked the C1. The statement 1 and 2 are true. The graph does not show to evaluate 3. नहीं, जैसे ऑफ कोर्स वो है ना कि ये लिखा हुआ है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि स्लोइंग डाउन ऑफ स्लोइंग स्प्रेड ऑफ ये 19। तो ये ग्राफ जो है, जो डेटा भले ही आपके पास नहीं है और ये, लेकिन स्लोइंग डाउन तो दिख ही रहा है ना, बिकॉज स्प्रेड का मतलब स्पाइक बढ़ने का होता है। तुम लास्ट के भी फिगर देखो तो इट्स ऑलमोस्ट बिकम ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये स्लोइंग डाउन का ही तो साइन है ना। Yes, sir. हम्म। So parallel is a sign of slowing down. मतलब के एक्स एक्सिस से पैरेलल होने का मतलब कि नंबर तो वाई एक्सिस पे है ना, तो अगर आप ऊपर बढ़ोगे तभी तो आपका केस लोड भी बढ़ेगा ना।
Yes, sir. हम्म, तो इसलिए अगर कोई Hmm. पैरामीटर जा रहा है तो स्लोइंग डाउन है। Hmm. Yes, sir. Got it. हम्म, तो the program for international student assessment has a standard test to evaluate educational attainment of 15-year-old student across several countries. Following a standard examination protocol, this protocol mandates all aspects of test administration and is same across all participating countries. The graph given below shows the number of test takers in three countries in 2019. तुम लोग समझ में आ गया ये अनगा? Did you get the paragraph? Yes, yes. एक बार फिर से देख लो कि एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ 15 ईयर स्टूडेंट्स के लिए और सेवरल कंट्रीज के लिए एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल डेवलप किया गया। ये सारे एस्पेक्ट्स को सेम करता है और तीन कंट्री का जो है वो दिया हुआ है। अब इसमें तीनों कंट्री का लाइन ग्राफ है ये। द लेफ्ट साइड हैज गिवन टेस्ट टेकर्स, राइट साइड मतलब एक्स एक्सिस हैज गिवन मंथ्स, और ये कलर्स जो हैं डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं कि बेस्ड ऑन द ग्राफ एबव, which of the following interpretation about the current need for test administration resources is most valid? ठीक है, अब बताना, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। The resources that need to be mobilized are the maximum in United States because the number of test takers। ये बताओ। Yes, sir. क्योंकि जाहिर सी बात है, टेस्ट टेकर ज्यादा है Hmm. तो मोबिलाइज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स उतना ही रिसोर्स भी इंक्रीज होंगे। फिर लिखता है कि द रिसोर्सेज दैट नीड टू बी मोबिलाइज्ड आर मैक्सिमम इन यूनाइटेड किंगडम बिकॉज द नंबर ऑफ टेस्ट टेकर इज वेरी हाई कंपेयर टू इट्स स्मॉल पॉपुलेशन। इसको बताओ क्या बोलूं मैं, यस और नो? No, sir. बिल्कुल, क्योंकि पॉपुलेशन से मैटर नहीं करता है, टेस्ट पे पर यूनिट स्टूडेंट पे जो रिसोर्स लगने हैं वही लगना होगा, ठीक है। सर, मेरा हाँ, ये रीजन नहीं था। मैंने ग्राफ पे ये देखा कि वो सबसे नीचे है, तो आई थॉट दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नहीं नहीं, वैसे नहीं है ये। हम्म। इन्होंने ये उस चीज को ही तो काउंटर करने के लिए बोल रहे हैं ना, कि भले ही कम टेस्ट टेकर्स हैं बट कंपेयर टू स्मॉल पॉपुलेशन अगर देखा जाए प्रोपोर्शन में तो वो ज्यादा है। मतलब यस नंबर सर। ऑफ टेस्ट टेकर्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करें तो ये ब्रिटेन का बहुत ज्यादा है, ये यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं। एंड विथ दिस पोर्ट्रेस ये इसके स्टेटमेंट के साथ ये बता रहे हैं कि जो मोबिलाइज है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो ये तो हम लोग मतलब हम व्हाट वी नो इज कि resources need to be mobilized with the number of candidates, not the proportion, है ना। क्योंकि यस जो सर। बेंच टेबल चेयर पेपर रिक्वायरमेंट स्टेशनरी रिक्वायरमेंट वो प्रोपोर्शनली टू द स्टूडेंट्स, नॉट द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हम नहीं करेंगे। The resources that need to be mobilized are maximum in India because large number of test takers spread over the big country। ये बताओ। सर, इसका मैं आंसर एक रीजन से बोल रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम इन इंडिया और उसके ऊपर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो मैक्सिमम इन यूनाइटेड स्टेट्स है। तो आउट ऑफ दिस थ्री आई विल से दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ यूएस हैज द मैक्सिमम थिंग। अच्छा, तुमने बोला कि एक जगह मैक्सिमम आ गया तो फिर अह, नो सर, जो ग्राफ ऑल्सो एज आई कैन सी। हाँ, इसमें ये भी पॉइंट है ना कि स्प्रेड ओवर बिग कंट्री से मतलब नहीं है ना, क्योंकि कौन जानता है कि आप पूरे देश में आप टेस्ट ले रहे हो, ठीक है। सेंटर्स तो कुछ एरिया वो भी लिमिटेशन में ही होगा, ठीक है। तो जो आपका रिसोर्स है दैट इज ऑलवेज इन प्रोपोर्शनल टू द स्टूडेंट्स। हम्म, तो ज्योग्राफिकल स्प्रेड, हालांकि तुम्हारा भी कहना सही है कि मैक्सिमम तो एक ही जगह होगा, बट दिस इज नॉट। तो इसका आंसर तुमने दिया होगा, कंक्लूजन वन इज ट्रू बट टू एंड नॉट टू एंड थ्री, ठीक है।
Yes, sir. This was I marked in my own ठीक answers also. है, यही सही है। अब ये देखो, दिस इज परसेंटेज बेस्ड। बोलता है कि एज अ पार्ट ऑफ असिस्टिंग द एचएसएस डिपार्टमेंट आईआईटी गांधीनगर in the organization of the major conference, including arranging mementos for guest speakers. You have been tasked to purchase 4 sandalwood charkhas at the local khadi store. When you visit Gandhi Ashram to purchase this memento, you discovered that there are multiple stores selling the same sandalwood charkha for the same price. However, each store is offering a different discount offer. Which of the following discount offer allow allow you to save maximum sum of money? ठीक है। अब एक एक स्टोर को देखते चलते हैं। डबल डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट प्लस एडिशनल 12% ऑफ। तो स्टोर वन जो है, इसका फाइनल अगर डिस्काउंट देखा जाए तो पहले अगर प्राइस 100 है तो पहले 80 हो गया, और 80 के बाद फिर 12%। तो 80 का 12% कितना होता है? 9.6। ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 70 पॉइंट 4। ठीक है। स्टोर वन है ये। सर ये हमने 71.6 जो 20.4 70.6। हाँ। हाँ सर। सर उसको हमने कैसे निकाला सर? 80 का 12% करके निकाला हाँ, कि 100 का? एडिशनल तो वही होता है ना, जैसे पहले 20% से जो प्राइस कम हुआ, उस यस बचे हुए सर। प्राइस से फिर 12% और कम होगा। मतलब 80 से हमने करके निकाला। हाँ, सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब 80 अपॉन सर 12 into 100। नहीं भाई, फिर 80 × 12 बाई 100 ऐसा। 80। हाँ सर, सॉरी सॉरी। और ओके। डायरेक्ट अगर प्राइस चाहिए होता है तो आप ऐसे कर दो, 80 × 88/100। ठीक है, 12% कम होके जो भी प्राइस मिलता ओके सर, गॉट द पॉइंट। है। सेकंड है हमारा स्टोर टू, बम्पर ऑफर फ्लैट 30% ऑफ। तो वो तो एकदम 70 में मिल रहा है। स्टोर थ्री जो है, स्पेशल सेल बाई टू गेट वन फ्री। ये बताना इसमें कितने का वो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। अल्टीमेटली जैसे ऐसे तुम डिस्काउंट अगर देखो, बाई टू वन गेट फ्री, तो आप यस। तीन के प्राइस में, जैसे तीन का प्राइस है, अगर आप 300 रुपये है, तो उसमें आप दो ही का पे कर रहे हो, 200। तो ऐसे तो दिख रहा है 33 1/3% का डिस्काउंट। नहीं और दिख रहा सर? है? जैसे बाई टू गेट वन फ्री का मतलब क्या होता है कि आप दो का पैसा दे रहे हो। जैसे एक की प्राइस 100 है तो 200 रुपया दे रहे हो, है ना? तो आपको कितने का प्रोडक्ट मिल रहा है? 300 का। यस यही सर। होता है। तो अगर ये डिस्काउंट देखें तो 300 में 100 का डिस्काउंट है, यस सर। विच इज 33 1/3% का। ओके सर। तो ऐसे तो ये ज्यादा है, लेकिन आपको लेना है 4 चरखा, ये भी लिखा हुआ है देखो, 4 सैंडलवुड चरखा। तो आप बेसिकली अगला मतलब 4 ही खरीदोगे ना, तो आपको अगले वाले के लिए तो 100 पे करना पड़ेगा। यस सर। तो अल्टीमेट डिस्काउंट क्या होगा कि आप बेसिकली 400 की चीज के लिए यू विल बी पेइंग 300। तो आपका डिस्काउंट तो 100 ही रह जाएगा, विच इज 25%। तो स्टोर थ्री का जो इफेक्टिव डिस्काउंट होगा प्लस वन पे करने के बाद 25% होगा। जैसे यहाँ इफेक्टिव डिस्काउंट है 29.6, यहाँ पे 30% और यहाँ पे 25%। अब ये तीसरा वाला बोलते हैं कि बाई थ्री गेट वन फ्री।
तो इसमें आपको फिर से आ गया स्टोर फोर में। स्टोर फोर में आ गया आपका, तीन का पैसा दे रहा हो, 300 रुपया, एंड यू आर गेटिंग 400। तो 100 रुपीज आपको मिलता है, विच इज अल्टीमेटली फिर से आपको 25%। तो मैक्सिमम सेविंग कहाँ हो रही है? फ्लैट 30% वाले में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ सत्यम। सर मुझे इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कर रही थी तो मुझे ये था कि कौन सा स्टोर इज गेनिंग द मोस्ट, नॉट द पर्सन। द स्टोर इज गेटिंग द बेनिफिट। आई थॉट दैट इज द क्वेश्चन which they are asking. यहाँ पे लिखा हुआ है ना। But right now I got the correct answer. Earlier I ticked for the four. अच्छा नहीं, यू हैव टू सेव द मैक्सिमम सम ऑफ मनी, ठीक है। Yes, sir. हाँ। अच्छा ये देखो, द नंबर ऑफ ट्रकिंग कंपनीज एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इन द सेलेक्टेड स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। असम, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, ये चार स्टेट का है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ट्रकिंग कंपनीज। As per the graph above, the following is the most valid conclusion. अब बताना तुम लोग। स्टेट विथ ग्रेटर नंबर ऑफ ट्रकिंग कंपनीज रिपोर्ट मोर एक्सीडेंट बिकॉज स्पीडिंग ट्रक्स आर मेन कॉज ऑफ मेजोरिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट। ये वैलिड है, क्योंकि ये Yes, तो sir. है कि जिसमें ज्यादा ट्रकिंग कंपनीज हैं उसमें ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। I believe yes, sir. क्यों? Sir, because the speed is the main cause for the majority of road accidents, and I have heard that Punjab is also the state where road accidents happens the most. नहीं देखो, एक तो ये याद रखो कि, कि ऐसे सब क्वेश्चन में ना यू डोंट हैव टू गो फॉर द डेटा दैट यू हैव। आपको ग्राफ के हिसाब से ही वैलिड कंक्लूजन निकालना है, समझे? So, sir, तो I believe first one is correct. अच्छा चलो पहले आगे पढ़ते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा। स्टेट विथ ग्रेटर नंबर ऑफ ट्रकिंग कंपनीज रिपोर्ट मोर एक्सीडेंट बिकॉज ऑफ द ट्रक्स आर ड्रिवन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस which increases the risk of being involved in accidents। ये There is no data like for like to conclude that, right? हाँ बिल्कुल, वो लेकिन लिखा है कि मोस्ट वैलिड कंक्लूजन क्या हो सकता है, ठीक है। Okay. तो आपको इसी में से देख के बताना है। स्टेट विथ ग्रेटर नंबर ऑफ ट्रकिंग कंपनीज एड अ ह्यूज नंबर ऑफ लार्ज व्हीकल टू द ओवरऑल ट्रैफिक इन दोज एरियाज विच इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। ये नहीं लग रहा है मोस्ट। ये सर, ये दिस वन कैन बी बिकॉज सर ओवरलोडिंग के केसेस भी बहुत आते हैं कि ओवरलोड हो गए हैं। नहीं तुम फिर अपने उस पे मत जाओ, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कैसे पता चल रहा है कि जिन स्टेट में ज्यादा कंपनीज है वहां ट्रक ज्यादा स्पीड से चला रहे हैं? हाँ सर, दैट इज रॉन्ग, आई कैन से दैट माय हाँ। पॉइंट। और बट सी सेकंड आई पॉइंट कैन में से बोलता है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, तो ये इससे भी नहीं पता चलता है कि उस स्टेट में ये। बट दिस इज वन ऑफ द वैलिड, मतलब जिसको हम थोड़ा वैलिड मान सकते हैं। कि ज्यादा व्हीकल आ गई तो आपका वो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सी ही होगा, नहीं अनगा? Yeah, C is valid, but also like why again why are we ruling out the first one? बिकॉज देर आर टू रीजंस, कि एक तो दो जगह आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। एंड इफ Oh, you'll okay. select first one तो you'll have to pick all of the above। All right. Okay, yeah, makes sense. ना, तो इसलिए थोड़ा अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि एक ऑप्शन की तरफ बायस हो रहे हो, तो तुम पूरे ऑप्शंस को देख के भी समझ सकते हो कि वेयर शुड यू लाइक टू गो, All right. ठीक है। इसके बाद बोल। सर हाँ।
Sir, can we rule out option number A and B due to their main reason of occurrence of accidents? इज नॉट नंबर ऑफ ट्रक्स। Yes, sir. वही ना, वही तुम भी बोल रहे हैं। Okay, sir. वो डायरेक्ट रिलेट नहीं कर रहा है ना कि जो वो है कि ट्रक Yes, sir. से ये सब। सेकंड वाला डायरेक्ट रिलेट कर रहा है कि ज्यादा कंपनीज हैं तो ज्यादा ट्रक हैं तो ओवरऑल ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो इससे एक्सीडेंट की रिस्क ऑफ एक्सीडेंट की इंक्रीज भी कर रहा Yes, sir. Yes. है। अच्छा, ये बताता है प्लीज रिव्यू द टेबल बिलो विच शोज द प्रीवियस परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स ऑफ 4 IIT गांधीनगर बेस्ट क्रिकेट बॉलर्स। तो ये है क्रिस, नवीन, प्रदीप और आमिर। द इंटर IIT cricket team selectors are looking for bowler with predictable and consistent performance record. Whom are they most likely to select? अब बताओ इसमें तुमने क्या किया है। सर आई लेफ्ट द क्वेश्चन। तुमने छोड़ दिया? हाँ क्योंकि सर, मतलब मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि सर समझ ही नहीं आया, मतलब सर बैठा ही नहीं दिमाग में कि इसको सॉल्व कैसे करूं मैं। नहीं, इसमें पहले बोला कि जिसका परफॉर्मेंस जो है प्रिडिक्टेबल हो और कंसिस्टेंट हो, तो आप ये देखोगे कि कहाँ ओके पे रिकॉर्ड्स जो है कंसिस्टेंट दिख रहे हैं। ओके सर, इट मीन्स कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमें वर्ड्स को पकड़ना है। Sir, हाँ। do we need, sir, variance कैलकुलेट करना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, ये छोटा ऐसे ही देख के पता चल जाएगा। बहुत क्लोज रहता तब अलग बात थी। तो जैसे 5.3, 4.8, 9.2 देख रहे हो, वैरी कर रहा है ना बहुत ज्यादा। यस सर, वेरी कर रहा है। और ये भी बॉल्स पर विकेट भी वैरी कर रहा है इसका। 32 से 24, फिर 47, फिर 79। तो इसका तो प्रेडिक्टेबल और कंसिस्टेंट है ही नहीं। ठीक है। उसके बाद इसमें देखो, तो ये भी बहुत वैरी कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा कंसिस्टेंट है। समझ में आ रही है बात? तो इसमें कम वैरी हो रहा है ना। अनगा देख रहे हो? बताओ। Yeah, yeah, यस yeah. सर। ये क्या है, बॉल्स पर विकेट, ये है रन्स पर ओवर। ठीक है। तो नवीन इज लिटिल इन आवर लिस्ट। अब प्रदीप देखो, प्रदीप जो है ये भी कंसिस्टेंट है, रन्स पर ओवर और बॉल पर ओवर भी कंसिस्टेंट है। तो अगर यस सर। कंसिस्टेंसी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी की बात आएगी तो प्रदीप इज अभी तक सबसे बेटर है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस खराब है। ये रन भी ज्यादा दे रहा है और ज्यादा बॉल पे भी विकेट ले रहा है। और आमिर जो है, आमिर का भी देखो, ये वाला तो प्रेडिक्टेबल है ना, मतलब दिस इज क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। यस सर। में अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब यहाँ पे वैरी कर रहा है अच्छा खासा। यस सर। तो अब यही गड़बड़ है इस क्वेश्चन में कि एज अ कैप्टन और एज अ वो सेलेक्टर, यू विल गो फॉर अ गुड बॉलर जो कम रन दे, विच इज नवीन। Yes. बट बिल्कुल प्रेडिक्टेबल वाली बात आ जाए, कंसिस्टेंसी, तो वो प्रदीप है। अगर प्रदीप और नवीन को कंपेयर करो तो ज्यादा प्रेडिक्टेबल कौन है? प्रदीप है, कि वो बॉल करने जाएगा तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10-11 रन देगा, है यस ना। सर। और लगभग 30-35 बॉल पे वो विकेट भी लेगा। बट हमारे लिए अच्छा प्लेयर तो ये है ना। तो नवीन। अब हाँ, तो और इसके केस में जो आपका बॉल पर विकेट है वो तो कंसिस्टेंट है ही। यस सर। इस केस में तो ये प्रेडिक्टेबल है। और ये भी जो है, अगर हम इसका एवरेज निकाले, वेरिएंस निकाले, तो इससे तो बुरा आएगा, बट आई हैव टू सेलेक्ट नवीन। एक्चुअली मेरा पॉइंट ये है
कि हमें वो वाला तो रखना ही पड़ेगा ना, कंसिडरेशन की अच्छा बॉलर हो। Yes, तो sir. नवीन वुड बी द राइट चॉइस। So why not Pradeep? Like consistency or predictability के according? हाँ वही तो, ये अगर, लेकिन बॉलर तो ये खराब है ना। सर ओवर में ज्यादा रन दे रहा है। हाँ, हर ओवर में ज्यादा रन भी दे रहा है, बहुत ज्यादा बॉल पे भी विकेट ले रहा है। यस सर, तो लेकिन इतना में तो यही है मैच ही खत्म हो दिक्कत जाएगा। इस क्वेश्चन के साथ दिक्कत है। इफ आई गो विद दिस टर्म, प्रेडिक्टेबल एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, उस केस में तो प्रदीप ही होगा। Yes, sir. हाँ लेकिन लेकिन होना चाहिए नवीन। ठीक है, नवीन को रखो क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी एटलीस्ट बॉल पर ओवर में तो ज्यादा है ना। मतलब जैसे इसके बॉल पर ओवर की कंसिस्टेंसी कम है, 35, 37, 31, तो इसमें वेरिएशन ज्यादा है। इसके बॉल पर ओवर में कंसिस्टेंसी ज्यादा है, तो अगर हम इसको और इसको देखें तो वहां पे ये ज्यादा कंसिस्टेंट है। और बॉल पर ओवर देखे तो नवीन ज्यादा, लेकिन बॉलर अच्छा तो नवीन ही कहलाएगा ना। एनीवे तुम कुछ भी कर सकते थे। आई थिंक तुम दोनों को नंबर मिलता है, अगर कोई नवीन सेलेक्ट करेगा तो ही वुड हैव आल्सो गॉट मार्क्स, जो प्रदीप सेलेक्ट करता है उसको भी मिलता है। ठीक है, इसी में है ऐसा दिक्कत, बाकी नेक्स्ट में से नहीं आएगा। तो अब लोग तुम लोग नेक्स्ट वाला नेक्स्ट उसमें करना करो, और Yes, sir. फिर हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे।